Hello everyone, my name is Amit Mandloi. Welcome to online platform of Rouse Academy. Let's begin with today's daily news review. So today is 22nd of March and 22nd of March is celebrated as World Water Day. The theme for 2023 for World Water Day is accelerating change to solve the water and sanitation crisis. The resolution to celebrate World Water Day was accepted by United Nations General Assembly in 1992. UNGA, United Nations General Assembly. First time World Water Day was celebrated on 22nd of March 1993. In past few years, there have been various changes for making the use of water sustainable so that the future generation could get the benefits of water. Water is an essential component for living beings, for life on earth, and hence to save water and make it available to everyone is the basic theme of World Water Day. इसको मनाने के पीछे भी कारण यह है कि सस्टेनेबल यूज ऑफ वाटर को प्रमोट किया जा सके, वाटर का वेस्टेज कम करने के लिए जो एडवर्टीजमेंट है, जो कैंपेन है, उसको प्रमोट किया जा सके, जिससे कि सस्टेनेबल यूज ऑफ वाटर को प्रमोशन मिले और फ्यूचर जनरेशंस को वाटर का जो रिसोर्स है विच इज एन एसेंशियल कंपोनेंट फॉर लाइफ, उसका बेनिफिट मिल सके. Sustainable Development Goals, which were adopted in 2015, also mentions water and sanitation as one of the goal. Access of water and sanitation to all is a sustainable development goal and which has also been highlighted in this year's theme. So World Water Day to spread awareness for saving water इसलिए मनाया जाता है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. SC Bench seeks data on alternatives to hanging. इंडिया में बहुत सारे ऐसे हीनियस क्राइम्स हैं जिनके लिए कैपिटल पनिशमेंट का प्रावधान है. कैपिटल पनिशमेंट मतलब डेथ पेनल्टी. ऐसे कौन कौन से क्राइम हैं जिसमें डेथ पेनल्टी का प्रावधान है? एक है मर्डर, सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी, मर्डर. Second is Daketi with murder, that is section 396 of IPC. Then there is criminal conspiracy, section 120B of IPC. Then waging war against the government of India or planning to prepare for war against the government of India, that is under section 121 of IPC. Then we also have abatement to mutiny, mutiny के लिए उकसाना, under section 132. There are several provisions in the Indian Penal Code under which death penalty can be awarded. अब यहां पर दो डिबेट है. पहली जो इस न्यूज में हाईलाइट की है कि सुप्रीम कोर्ट is looking forward for alternatives to hanging. कैपिटल पनिशमेंट तो दे दी, लेकिन कैपिटल पनिशमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या हैंगिंग एक सही तरीका है? तो हैंग करके जो हम बोलते हैं कि द पर्सन शेल बी हैंग टिल डेथ, तो हैंग करने के अलावा भी कोई और अल्टरनेटिव है अवेलेबल जो हैंगिंग से अच्छा हो? तो एक तो वो है जो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में एड्रेस करने का प्रयास किया गया. सेकंड, एक डिबेट और चलती है कि क्या कैपिटल पनिशमेंट इटसेल्फ इज कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल और डेमोक्रेटिकल. मतलब ऐसा तो नहीं कि कैपिटल पनिशमेंट जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो. पास्ट में ऐसी चीजें हो चुकी है. तो देयर आर टू डिबेट्स. पहली, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ कैपिटल पनिशमेंट.
And the second one is constitutionality of hanging till death. As a method to execute death penalty or capital punishment, whatever you want to say. तो ये दो इश्यूज हैं. पहला constitutionality of punishment, capital punishment, and second constitutionality of hanging till death as a method to execute capital punishment. दो मुद्दे हमारे सामने. पहले हम डिस्कस करते हैं जो इस आर्टिकल में एड्रेस किया, वो है सेकंड वाला मुद्दा. Basically, there are various methods which are being followed in several parts of the world. अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके हैं कैपिटल पनिशमेंट को एग्जीक्यूट करने के. आपने पास्ट में बहुत सारी रोमन फिल्म्स देखी होगी, कुछ और हॉलीवुड मूवीज देखी होगी जहां पर एकदम स्ट्राइक ऑफ कर देते हैं, गले को काट देते हैं, गुलेटिन कर देते हैं जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, तो वो भी एक तरीका एग्जीक्यूट करने का, कैपिटल पनिशमेंट देने का. स्टोन करना मतलब कि पत्थरों से फेंक फेंक करके मारना, दैट इज ऑल्सो मेथड फॉर एग्जीक्यूटिंग कैपिटल पनिशमेंट. इवन गिविंग लीथल इंजेक्शंस, गैस चैम्बर्स में लॉक कर देना, है ना, उसके बाद कोई ऊंची इमारत से गिरा देना. तो ऐसे बहुत सारे अल्टरनेटिव तरीके हैं जिसके माध्यम से हम डेथ पेनल्टी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. इंडिया में जो फॉलो किया जाता है दैट इज हैंगिंग टिल डेथ. नेक पे फंदा लगा करके टांग देंगे. ठीक है, दैट इज व्हाट मेथड इज यूज्ड इन इंडिया. तो ये जो पर्टिकुलर केस है इसमें सीजीआई इज आस्किंग फॉर सेवरल अदर अल्टरनेटिव्स. क्या साइंस ने ऐसी प्रोग्रेस की है कि कोई ऐसा अल्टरनेटिव हो, ठीक है, जो ह्यूमन डिग्निटी के साथ कंसिस्टेंट हो, ठीक है, और साथ ही साथ कम पेन करे व्यक्ति को मरने के लिए पहले. ठीक है, क्योंकि डेथ पेनल्टी देने का मतलब ये नहीं है कि उनको अनडिग्निफाइड डेथ दी जाए. बिकॉज आर्टिकल नंबर 21 अगेन कम्स इनटू पिक्चर. Article 21 talks about dignity of an individual whether he is living or he is dying. So right to dignified death is also a right under Article 21. तो हमको उसको डेथ पेनल्टी भी देनी है, तो डेथ पेनल्टी शुड बी डिग्निफाइड, गिविंग अ डिग्निफाइड डेथ. ठीक है, ऐसा नहीं कि उनको किसी ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से डेथ पेनल्टी को एग्जीक्यूट किया जाए कि उनकी डिग्निटी, ठीक है, ह्यूमन डिग्निटी जो है वो हार्म हो, मानवीय गरिमा को हार्म पहुंचे. ऐसी तरीके से हमको कैपिटल पनिशमेंट एग्जीक्यूट नहीं करना है. और पास्ट में ऐसे बहुत सारे पिटिशंस आए हैं कि हैंगिंग टिल डेथ कॉजेस मोर पेन. तो एक साइंटिफिक एनालिसिस किया जा रहा है कि कितने समय के बाद हैंग करने के, कितने समय के बाद व्यक्ति वास्तविकता में मरता है, टाइम लिमिट, कितने टाइम के बीच में उनकी डेथ हो जाएगी एक बार हैंग करने के बाद में, कितना पेन होगा. ठीक है, और साथ में इस चीज पर वार्तालाप की जा रही है कि क्या कोई अल्टरनेटिव है हैंगिंग के अलावा, क्या कोई ऐसा ह्यूमन अल्टरनेटिव है जो हैंगिंग से अच्छा हो, ठीक है, और डेथ पेनल्टी भी दे दे. तो लीथल इंजेक्शन पे बात की जा रही है और कुछ ऐसी कुछ चीजें मिल जाए जिससे कि डेथ हो जाए, डेथ पेनल्टी एग्जीक्यूट हो जाए और पेन कम हो, डिग्निटी मेंटेन रहे, ह्यूमन डिग्निटी मेंटेन रहे, ये सब चीजें. ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज बीन डिस्कस्ड. आर्टिकल में यह भी देके रखा है कि इन 2018 सेंटर हैज फाइल्ड एन एफिडेविट सपोर्टिंग डेथ बाय हैंगिंग. ठीक है, सपोर्ट में गवर्नमेंट ने एफिडेविट फाइल किया है. उनका कहना यह है कि इट हैज नॉट फाउंड द मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन बाय हैंगिंग टिल डेथ एज बार्बरिक, इनह्यूमन और क्रूअल. ठीक है, कंपेयर्ड टू फायरिंग स्क्वाड एंड लीथल इंजेक्शंस. फायरिंग स्क्वाड मतलब गोली मार देना. किसी को डेथ पेनल्टी दी है तो उसको गोली मार करके हत्या कर देना है. हार्ट पे गोली मार दो, सिर पे गोली मार दो, अलग अलग जगह पर. अगर बाई चांस गोली मिस कर गई तो फिर ही विल डाई अ पेनफुल डेथ. ठीक है, इसके अलावा एक और चीज बताएगी, दैट इज लीथल इंजेक्शंस. तो दैट कॉजेज मोर पेन. तो उन्होंने बताया गवर्नमेंट ने एफिडेविट में कि जो हैंगिंग टिल डेथ जो है, हैंगिंग बाय नेक, इज नॉट बार्बरिक, नॉट इनह्यूमन एंड नॉट क्रूअल एज कंपेयर्ड टू firing squads and lethal injections which are being practiced in other parts of the world. तो इसके सपोर्ट में, हैंगिंग के सपोर्ट में ऑलरेडी
गवर्नमेंट ने एफिडेविट फाइल किया है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि कुछ इस तरीके की मेथड आ जाए, कुछ इस तरह का नया अल्टरनेटिव आ जाए जो हैंगिंग से अच्छा हो। और अगर ऐसा अल्टरनेटिव मिल जाता है देन हैंगिंग टिल दैट विल बी डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, क्योंकि वो आर्टिकल नंबर 21 के खिलाफ जाएगा इसलिए। ठीक है, तो एक डिबेट तो ये है। जो सेकंड डिबेट है दैट इज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ कैपिटल पनिशमेंट इटसेल्फ। एक बड़ा डिबेट का मुद्दा रहा है कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ कैपिटल डिबेट। 1978 में एडिया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्रा एक केस हुआ। इसके पहले भी एक केस हुआ था, जगमोहन केस। ठीक है, पर ये एडिया वर्सेस एडिया अनम्मा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्रा 1974। In this case, Supreme Court held that for murder, life imprisonment is a rule, but capital punishment is an exception. मर्डर के केस में जैसे आर्टिकल 30 सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी बोलता है, तो मर्डर के केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए, बट इन सम केसेस कैपिटल पनिशमेंट कैन बी गिवन एज एन एक्सेप्शन। ठीक है, ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया। इसके बाद एक केस हुआ बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980। ये एक इंपॉर्टेंट केस है इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यू का। इन दिस केस एससी अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ कैपिटल पनिशमेंट। बच्चन सिंह केस 1980, Supreme Court upheld the constitutionality of capital punishment, saying that there is the capital punishment should be awarded in rarest of the rare case. हर केस में नहीं दे सकते, rarest of the rare case में capital punishment can be given। ठीक है, बाकी बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, मतलब एक लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर कैपिटल पनिशमेंट को कोर्ट्स को यूज करना है। ठीक है, बट constitutionally capital punishment has nothing to do with article 21 and it does not violate article 21, ये कहा गया। बाद में एक केस हुआ मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस। मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस दैट वाज इन 1983 आई सपोज। मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस। इस केस में Section 303 of IPC was struck down because Section 303 mentions only death penalty as a punishment. For the offense, it mentions death penalty as the only punishment available. तो इसलिए इस कैपिटल पनिशमेंट वाले ओनली कैपिटल पनिशमेंट देने वाले पेनल लॉ को स्ट्रक डाउन करने का काम सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी कहा कि दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी बार बार हाईलाइट कर रहा है कि कैपिटल पनिशमेंट जो है वो आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 14 को वायलेट करता है। ऐसा किसी किसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईलाइट किया है। बट सुप्रीम कोर्ट हैज ऑल्सो मेंटेन्ड कि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी अपहेल्ड की जाती है कैपिटल पनिशमेंट की, बट ओनली इन वन केस, कि वो एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ऑप्शन हो। ठीक है, ऐसा कोई क्राइम किया हो जो बहुत सीवियर नेचर का हो, हीनियस नेचर का हो। ठीक है, उसी केस में डेथ पेनल्टी दी जाएगी, रेयरेस्ट केस में, नॉट इन ऑल केसेस। ठीक है, बिकॉज एवरी पर्सन हैव राइट टू लाइफ अवेलेबल एंड राइट टू डिग्निफाइड डेथ ऑल्सो अवेलेबल। तो कोशिश की जाएगी कि उसको बचाया जा सके, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाए। ठीक है, कठोर कारावास के साथ लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाए, लेकिन कैपिटल पनिशमेंट से रोका जाए। कैपिटल पनिशमेंट सिर्फ लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। प्री प्लान मर्डर किया हो किसी ने, कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया हो, तो ऐसे केसेस में कैपिटल पनिशमेंट की वैधता रहेगी, लेकिन बाकी हर केस में वैधता नहीं रहेगी। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर वाली जो डॉक्ट्रिन आई उसके लिए ये मेंशन किया गया कि विथ
when a judge is declaring or awarding a capital punishment, he has to give those special reasons कि किस रीजन के कारण कैपिटल पनिशमेंट दी जा रही है, व्हाई लाइफ इम्प्रिजनमेंट कैन नॉट बी एन ऑप्शन। तो स्पेशल रीजंस के साथ में ही कैपिटल पनिशमेंट दी जा सकती है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनली अपील किया गया। इस केस में एक और मोड़ आता है जब लॉ कमीशन से सुप्रीम कोर्ट ने सलाह मांगी इस पर्टिकुलर प्रावधान से संबंधित कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो लॉ कमीशन ने अपनी 262nd रिपोर्ट में ऑफ लॉ कमीशन, ठीक है, दैट ऑल्सो मेंशन्ड अबाउट कैपिटल पनिशमेंट। बट लॉ कमीशन ने एक चीज बोली, कैपिटल पनिशमेंट शुड बी अबॉलिश्ड, कैपिटल पनिशमेंट शुड बी अबॉलिश्ड। अब अबॉलिश कर रहे हैं इसका मतलब क्या है? एक्सेप्ट इन टेररिज्म, एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ टेररिज्म, मतलब सिर्फ टेररिज्म के केस को छोड़ करके लॉ कमीशन की ये रिपोर्ट भी ये कहती है कि इट इज इंडेरोगेटरी, सो कैपिटल पनिशमेंट शुड बी अबॉलिश, पूरी तरह से अबॉलिश कर देना चाहिए, ऐसा माना है लॉ कमीशन की रिपोर्ट में भी। खैर ये मुद्दा भी शांत है, जो मुद्दा गरमाया हुआ है दैट इज मेथड टू एग्जीक्यूट कैपिटल पनिशमेंट, ठीक है। आपका इस मुद्दे पर क्या विचार है, यह जानते हुए कि विश्व में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने कैपिटल पनिशमेंट को पूरी तरह से बैन कर दिया है, ठीक है। दे हैव मूव्ड ऑन टू सर्टेन अदर अल्टरनेटिव्स rather than capital punishment, और विश्व के अलग अलग कोने में अलग अलग तरीके की मेथड्स इस्तेमाल की जाती है टू एग्जीक्यूट द कैपिटल पनिशमेंट। सो आप लोगों का इस बारे में क्या ओपिनियन है कि क्या कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और होनी चाहिए तो किस तरीके से एग्जीक्यूट की जाना चाहिए कैपिटल पनिशमेंट को, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, अपना ओपिनियन शेयर करते रहिए ताकि थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। SC to examine if poll bonds, please, need to be referred to a constitutional bench. Poll bonds का मतलब यहां पर है electoral bonds। ठीक है। प्रशांत भूषण appearing for an NGO Association for Democratic Reforms, जिन्होंने फाइनेंस एक्ट में 2016 और 2017 में जो अमेंडमेंट किए गए और उनको मनी बिल के तौर पर पास किया गया, उसके ऊपर पिटीशन लगाया है कि इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया जाए, ठीक है, या फिर इसको नल एंड वॉइड किया जाए बिकॉज इट इज अलाउइंग सर्टन थिंग्स व्हिच आर अनडेमोक्रेटिक, ठीक है। जैसे इनका कहना है दीज अमेंडमेंट्स हैव रिमूव्ड द कैप्स ऑन campaign donation by companies and have legalized anonymous donations. The Finance Act of 2017 has introduced the use of electoral bonds which are exempt from disclosure under the RPA Act. ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज को आरपीए एक्ट के अंतर्गत और फाइनेंस एक्ट के अंतर्गत ये छूट मिल गई, ये राइट मिल गया कि दे डू नॉट हैव टू डिस्क्लोज द पॉलिटिकल डोनेशन रिसीव्ड बाय देम इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, ठीक है, ये इन्होंने हाईलाइट किया। साथ ही साथ इन्होंने बोला कि फाइनेंस 16 also amended the Foreign Contribution Regulation Act of 2010, और इसको अमेंड करके, ठीक है, इसको अमेंड करने की वजह से फॉरेन कंपनीज विथ सब्सिडरीज इन इंडिया कैन फंड पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, और इसी की वजह से इट हैज इफेक्टिवली एक्सपोज्ड इंडियन पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेसी टू इंटरनेशनल लॉबिस्ट एंड द पिटिशनर हैव कंटेंडेड दिस। कुल मिलाकर के दो चीजों के बारे में सवाल खड़े किए हैं, पहला है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम और दूसरा है FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010, जिसकी वजह से फॉरेन कंट्रीब्यूशंस को रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। और ये दोनों जो चेंजेस हुए हैं ये फाइनेंशियल एक्ट 2016 और 2017 के माध्यम से किए गए हैं। 2017 के माध्यम से एक स्कीम इंट्रोड्यूस की गई, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। तो ये सबसे पहले हम जानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम विच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2018, एम था ट्रांसपेरेंसी लेकर के आना,
इन पॉलिटिकल फंडिंग। एम था कि धीरे धीरे ब्लैक मनी जो कंट्रीब्यूशन उसको फेज आउट करना, पॉलिटिकल फंडिंग के केस में जो ब्लैक मनी इस्तेमाल होता है उसको फेज आउट करना, ये एम था, ताकि रेगुलेट किया जा सके पॉलिटिकल फंडिंग को। अब इस एम के लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम लेकर के आई गई, और स्कीम क्या है? एसबीआई जो कि इश्यूअर है इलेक्ट्रल बॉन्ड का, ठीक है, एसबीआई से कोई भी इंडिविजुअल, एनी इंडिविजुअल और कंपनी कैन परचेज इलेक्ट्रल बॉन्ड, and these electoral bond purchased by these individuals and companies, they can give it to the political party of their choice, which can encash that electoral bond in cash. और इलेक्ट्रोल बॉन्ड कैसा है? इलेक्ट्रोल बॉन्ड इज नथिंग बट अ मनी इंस्ट्रूमेंट, लाइक प्रोमिसरी नोट। शेयर मार्केट और ये सब चीजें जो आप पढ़ते हैं, कैपिटल मार्केट पढ़ते हैं, वहां प्रोमिसरी नोट पढ़ते हैं, तो ऐसे ही इलेक्ट्रल बॉन्ड भी है। इलेक्ट्रल बॉन्ड किसने होल्ड किया उसकी जानकारी रहने की जरूरत नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज को, ठीक है, वो जिसके पास है एक तरीके से बियरर इंस्ट्रूमेंट है, जिसके पास गया उसका पैसा हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली दिस इलेक्ट्रल बॉन्ड विच इज बीन परचेज्ड बाय दीज कंपनीज, दे गिव इट टू द पॉलिटिकल पार्टी, और अब पॉलिटिकल पार्टी उसको इनकैश करा सकती है, इसको वापस से बैंक को दे करके। इश्यू कौन करेगा? एसबीआई इश्यू करेगा, ठीक है, एसबीआई इश्यू करेगा, साल में 4 बार इशू करेगा। इलेक्शंस के साल में एक्सटेंशन दिया जाता है, 15 दिन 30 दिन ज्यादा समय तक इशू किया जाएगा, ठीक है, और वो इशू करने के बाद में जो इलेक्ट्रल बॉन्ड जिसने भी खरीदा, ठीक है, वो उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को जिसको वो चाहता है उसको इलेक्ट्रल बॉन्ड दे देगा, ठीक है। ये पूरी स्कीम थी, एक मनी इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया। कोशिश ये थी कि पॉलिटिकल फंडिंग को किसी तरह से रेगुलेट किया जा सके। अब कुछ चीजें जो छोटी छोटी इसके अंदर है वो समझ लेते हैं पहले, जो प्रीलिम्स के काम की इंपॉर्टेंस की है। इलेक्ट्रल बॉन्ड की वैलिडिटी कितने दिन की होती है? 15 डेज की। जिस दिन इश्यू हो उसके 15 डेज के भीतर ही उसको इनकैश कराना होगा, दैट इज द टोटल लाइफ ऑफ इलेक्ट्रल बॉन्ड। सेकंड, किसको इश्यू किया जा सकता है, मतलब कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को ये इलेक्ट्रल बॉन्ड दिया जा सकता है जो इनकैश करा सकती है? ऑल दोस पॉलिटिकल पार्टीज विच आर रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 29, Section 29 of RPA Act, Section 29A of RPA Act. इनको इश्यू कर सकते हैं या इनको दे सकते हैं जो इन कैश इसको करा पाएंगे। प्लस पॉलिटिकल पार्टी शुड ऑल्सो हैव वन मोर क्वालिफिकेशन, दैट इज दे शुड हैव एट लीस्ट रिसीव्ड 1% ऑफ द टोटल वोट्स इन द लास्ट लोकसभा इलेक्शंस और स्टेट लेजिस्लेटिव जनरल इलेक्शंस। तो ऐसा प्रावधान किया गया कि कौन एलिजिबल है इस डोनेशन के, तो ऑल दोस पार्टीज विच आर रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 29A ऑफ आरपीए एक्ट and who have received, those political parties who have received 1% or at least 1% of the votes in the last general elections, either of Lok Sabha, either of state legislative assembly. तो एलिजिबिलिटी हमको पता है, कौन इश्यू करेगा ये पता है, लाइफ हमको पता है, स्कीम 2018 में आई थी तो स्कीम हमको पता चल गई। अब इश्यू क्या है? इश्यू समझिए, इश्यू ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जिस एम के साथ आई थी वो एम अपना पूरा नहीं कर पाई। ट्रांसपेरेंसी, जो फाइनेंशियल एक्ट आया 2017 का, दैट एग्जेम्प्टेड द पॉलिटिकल पार्टी आर एग्जेम्प्टेड टू डिस्क्लोज द डोनेशंस रिसीव्ड बाय इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से मिला हुआ डोनेशन ना डिस्क्लोज करने के लिए बाध्यकारी नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज। ऑल्सो आरटीआई एक्ट के अंतर्गत भी इनसे वो इंफॉर्मेशन नहीं मांगी जा सकती। दे आर नॉट लायबल फॉर डिस्क्लोजिंग दोज इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट। मतलब ये कुल मिलाकर के आरटीआई एक्ट को भी लिमिट कर रहा है। तीसरा, एक तो ये हो गया, सेकंड आरटीआई एक्ट के खिलाफ जा रहा है। तीसरा,
अब क्योंकि एसबीआई इशू करता है, एसबीआई एज ए पब्लिक सेक्टर बैंक, उस पर कंट्रोल गवर्नमेंट का है, तो गवर्नमेंट के पास मोनोपोली है डेटा के ऊपर। गवर्नमेंट कैन एनी टाइम नो कि हु हैज इश्यूड एन इलेक्टोरल बॉन्ड, और वो इलेक्टोरल बॉन्ड कौन सी पार्टी को उन्होंने दिया है, ये उनको आसानी से पता चल जाएगा, बिकॉज दे हैव द एक्सेस टू दैट डेटा। और जब गवर्नमेंट के पास में डेटा की एक्सेसिबिलिटी है, तो दे कैन एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम दोज प्लेयर्स, ठीक है, जो उनको पॉलिटिकल डोनेशन नहीं दे रहे, या फिर वो उनको प्रताड़ित कर सकते हैं, उन कंपनीज को जो अपोजिट पार्टी को फंडिंग कर रहे हैं, पॉलिटिकल डोनेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये भी गलत है। और ये देखने को भी मिला है कि इस प्रावधानों की वजह से जो पार्टी सत्ता में है उनको इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के अंतर्गत सबसे ज्यादा डोनेशन मिले हैं। 75% ऑफ द डोनेशन वर रिसीव्ड इन द लोकसभा इलेक्शंस, ऐसा रिपोर्ट्स में पब्लिश हुआ है बाय बीजेपी। किसको गए ये डोनेशंस? बीजेपी को। तो रूलिंग पार्टी को ज्यादा डोनेशंस मिल रहे हैं, बिकॉज ये सब चीजें हैं, गवर्नमेंट की मोनोपोली है। अगर किसी कंपनी वाले को काम करना है देश के अंदर, तो रूलिंग पार्टी की पॉलिसीज की, रूलिंग पार्टी के गुड बुक्स में बने रहना पड़ेगा। ब्लैक बुक में या बैड बुक्स में बने रहने की वजह अगर चले जाएंगे तो फिर समस्याएं खड़ी हो जाती है। परमिशंस, क्लियरेंसेस, बहुत सारी चीजें बड़े बिजनेसमैन के लिए होती है जो गवर्नमेंट से लिंक्ड होती है, ठीक है। तो अगर उनको गवर्नमेंट के साथ काम करना है, उसी गवर्नमेंट के अंदर रहते हुए देश के अंदर कुछ बिजनेस चलाना है, तो वो ये तो नहीं चाहेंगे कि वो गवर्नमेंट के बैड बुक्स में आ जाए। और क्योंकि गवर्नमेंट के पास में मोनोपोली ओवर एक्सेस ऑफ डेटा है, इसलिए उनको तुरंत पता चल जाएगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड कौन सी कंपनी ने, कौन से इंडिविजुअल ने इशू कराया और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को दिया है। अगर अपोजिट पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग किया है तो रूलिंग पार्टी उनको परेशान करेगी, ये आम बात है, ठीक है। इसलिए ये चीजें इसमें इश्यूज के तौर पर देखी जा रही हैं कि ये गलत है, ठीक है। तो ये चीजें, क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा मिल रहा है इससे, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी, क्रोनी कैपिटलिज्म, ठीक है, नॉन ट्रांसपेरेंसी, ऐसे बहुत सारे मुद्दे इसके साथ हैं। वे फॉरवर्ड क्या है कि कुछ इस तरह का सिस्टम आए जिसमें लोग एक्सेस कर पाए, लोगों को पता रहे कि कौन सा प्लेयर, कौन सा इंडिविजुअल किसको कितनी फंडिंग दे रहा है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी हो। अब सेकंड मुद्दे पे आते हैं। फाइनेंस एक्ट 2016 हैज आल्सो अमेंडेड द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। अब ये अमेंडमेंट के बाद में कोई भी फॉरेन प्लेयर हु हैज सब्सिडरी फर्म इन इंडिया कैन कंट्रीब्यूट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, और वो भी इन सत्ता, मतलब पार्टीज को, पॉलिटिकल पार्टीज को, भले वो सत्ताधारी पार्टी हो, अपोजिशन पार्टी हो, इनको डिस्क्लोज नहीं करना पड़ेगा कितना पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन उनके पास आया है विदेशों से, और किस कंपनी से विदेश से आया है, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ के लोग विदेश की कंपनी को हवाला के थ्रू पैसा देंगे और एक सब्सिडरी फेक कंपनी यहाँ पे स्टैब्लिश करेंगे और पैसा यहाँ पे वापस आ जाएगा, जो होता है ना राउंड ट्रिपिंग। तो डोनेशन का राउंड ट्रिपिंग होगा, काला धन बाहर गया, सफेद किया टैक्स हेवन कंट्री में, वहां पर एक सब्सिडरी फर्म स्टैब्लिश करी, कंपनी स्टैब्लिश करी, उसकी एक सब्सिडरी फर्म इंडिया में स्टैब्लिश करी, और फिर जो पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग करनी है करते जाओ। राउंड ट्रिपिंग को बढ़ावा मिल रहा है। तो ये सारे मुद्दे इस पर्टिकुलर पिटीशन में एंटरटेन किए गए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इज थिंकिंग कि पोल बॉन्ड्स को क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास पहुंचा देना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मतलब एक ऐसी बेंच जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनल के इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, या कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कॉन्फ्लिक्ट में जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उस पर विचार किया जाएगा। ये बेंच मिनिमम 5 जजेस की होती है और सुप्रीम कोर्ट इसको कॉन्स्टिट्यूट करता है, ठीक है। तो ये पूरा मामला है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में जो हाईलाइट किया गया है, ठीक है। चलिए पिटीशन में आगे क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि 8 साल से ये पिटीशन लगभग चल रही है, लास्ट 8 ईयर्स, ठीक है। ऐसा चलते जा रहा है। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 ये 8वां साल चल रहा है। 8 साल के लगभग से पिटीशन दायर की गई है, ठीक है। तो ये पूरा मामला है एफसीआरए का और इसका, दोनों के ऊपर उन्होंने पिटीशन दायर कर रखी है। अब देखते हैं कि क्या इसमें नया होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Amid protest, Rajasthan becomes the first state to pass right to health bill. राइट टू हेल्थ बिल पास कर दिया है, और राइट टू हेल्थ बिल पास करने वाला राजस्थान कंट्री का पहला स्टेट भी बन गया है। अब ये राइट टू हेल्थ बिल क्या है?
राइट टू हेल्थ बिल विच हैज मैंडेटरी प्रोविजन फॉर मैंडेटरी फ्री ऑफ कॉस्ट इमरजेंसी ट्रीटमेंट फॉर एवरी रेसिडेंट ऑफ द स्टेट एट बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स। भले ही सरकारी अस्पताल हो या फिर निजी अस्पताल हो, दोनों ही अस्पतालों में इमरजेंसी ट्रीटमेंट मैंडेटरीली फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। ठीक है, पैसे पहले नहीं मांगे जाएंगे, अगर बाद में दे के जाते हैं तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है, और उसका भुगतान उनको कौन करेगा बाद में? सेंटर, ये स्टेट गवर्नमेंट्स करेंगी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, ये प्रावधान। इसके अगेंस्ट जो निजी संस्थान के डॉक्टर्स हैं, ठीक है, पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, उन्होंने अपोज भी किया इस बिल को, क्योंकि उनका नुकसान हो रहा है इससे। लेकिन फिर भी अमिट प्रोटेस्ट, क्योंकि मेजॉरिटी है सरकार गवर्नमेंट में वहां पर, ठीक है, लेजिस्लेचर में कांग्रेस गवर्नमेंट की मेजॉरिटी है, इसलिए उन्होंने पास कर दिया। ठीक है, राइट टू हेल्थ बिल। अब इसमें दोनों ही पक्ष हैं। एक सरकार का पक्ष है कि उनको इमरजेंसी सेवाएं देने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट करने की वजह से जो वर्ग इमरजेंसी सर्विसेज से वंचित रह जाता था, ठीक है, उसको कम से कम लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि एम्बुलेंस बाहर खड़ी है, पहले पैसे की व्यवस्था करो, उसके बाद इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया जाएगा। हार्ट अटैक आया हुआ है, लेकिन पहले पैसे लेकर के जाओ, फिर इमरजेंसी ट्रीटमेंट होगा। इस वजह से जो डेथ्स होती हैं, मोर्टालिटीज बढ़ती हैं, खासकर उस वर्ग की हम बात करें जो बहुत गरीब वर्ग है, जिसके पास इमीडिएट कैश अरेंजमेंट नहीं होता ऐसी सुविधाओं के लिए, तो वो वर्ग इस सुविधा के माध्यम से, इस राइट के माध्यम से उसको ये अधिकार मिल जाएगा कि कम से कम इमीडिएट कैश अरेंजमेंट तो नहीं करना पड़े। फ्यूचर में जो ट्रीटमेंट होगा उसके लिए कैश अरेंज करना पड़ेगा। अब इसमें दूसरा पक्ष है डॉक्टर्स का, पैरामेडिकल स्टाफ का, कि इमरजेंसी क्या, इमरजेंसी ट्रीटमेंट जिसको आपने इसमें डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, अगर इमरजेंसी डिफाइन नहीं किया है तो उसका फ्री ट्रीटमेंट करना मतलब कुछ भी इमरजेंसी के अंदर आ जाएगा। अब सबका अगर फ्री ट्रीटमेंट करेंगे तो ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, जो प्रॉफिट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशंस होते हैं बेसिकली, ये कैसे काम करेंगे? गवर्नमेंट तो ठीक है, गवर्नमेंट को तो फंडिंग मिल रही है, लेकिन प्राइवेट को कैसे मिलेगी? ठीक है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन प्रॉफिट ओरिएंटेशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि सरकार रेट देगी, लेकिन सरकार सरकारी रेट देगी। ठीक है, सरकार सरकारी रेट मतलब जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी रेट, वो मिलेगा। ये अभी जितना चाहें उतना उगाते हैं। ठीक है, कोई रेगुलेशन नहीं है इनके मेडिकल एक्सपेंसेस को रेगुलेट करने के लिए। इमरजेंसी केसेस में बहुत सारी मूवीज भी बन चुकी हैं, बहुत सारे लोग एक्टिविस्ट ने इस पे क्वेश्चंस भी रेज किए हैं कि देयर इज नो रेगुलेशन, नो बार ऑन द अपर लिमिट कि कितना चार्ज करेंगे किस सर्विस के लिए। ठीक है, हाँ, गवर्नमेंट कभी कभी बीच बीच में कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा स्टैंडर्ड फिक्स नहीं है कि हाँ इस सर्विस के लिए इतना, और किया भी नहीं जा सकता टेक्निकलिटीज की वजह से कि क्या एनालाइज, क्या डायग्नोस किया जाएगा उसके कारण। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी बार धांधली होती है। ठीक है, हॉस्पिटल्स की तरफ से होती है, डॉक्टर्स की तरफ से भी होती है, कि प्रॉफिट ओरिएंटेशन की वजह से, है ना, वो ट्रीटमेंट को बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, ज्यादा पैसा ले लेते हैं, बड़े हॉस्पिटल्स ज्यादा ही लेते हैं अपनी सुविधाओं के लिए। ठीक है, तो इसकी वजह से जो गरीब वर्ग के व्यक्ति हैं, जो ऐसे बैकवर्ड क्लासेस के व्यक्ति हैं हमारे यहाँ पर, जो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते इलाज को, उनको सफर करना पड़ता है, और इमरजेंसी सिचुएशन में सफर करना काफी ज्यादा नुकसानदायक उन वर्गों के लिए हो सकता है, डेथ की ओर भी लीड कर सकता है। इसलिए दोनों ही पक्ष हैं, अपने अपने पक्ष हैं। ये इमरजेंसी डिफाइन नहीं की, इस वजह से ये लड़ रहे हैं, और स्टेट गवर्नमेंट लड़ रही है उन तबकों के लिए जिनको ये अधिकार मिलना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ सर्विसेज का, खासकर इमरजेंसी सिचुएशन में, इसके लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Omnibus approach may not work for legislators' trial. This article basically highlights that सुप्रीम कोर्ट ने पास्ट में एक गाइडलाइन दिया कि ऑल द केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द लेजिस्लेटर्स, मतलब कि एमएलएज हो गए या एमपीज हो गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, उनके खिलाफ जितने भी लेजिस्लेटिव क्रिमिनल केसेस हैं, जो केसेस दर्ज हैं, उनको फास्ट ट्रैक तरीके से ट्रायल किया जाए। इसके लिए उन्होंने स्पेशल कोर्ट बनाने की बात कही, और ये स्पेशल कोर्ट स्पीडी ट्रायल के लिए अगेंस्ट लेजिस्लेटिव जो बनाने की बात की गई, इसके लिए कोर्ट ने एक अमिकस क्यूरे अपॉइंट किया, मतलब कि फ्रेंड ऑफ कोर्ट। ठीक है, इस केस में फ्रेंड ऑफ कोर्ट कौन है? एडवोकेट विजय हंसारिया।
senior advocate Vijay Hansaria. So he is urging for making a special कोर्ट फॉर स्पीडी ट्रायल और हर स्टेट के लिए एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन बना देने के लिए, ठीक है. बट सुप्रीम कोर्ट इज गिविंग अ सजेशन कि हर स्टेट की अलग अप्रोच होनी चाहिए, स्पेसिफिक अप्रोच होने की. हर स्टेट के बर्डन्स अलग अलग हैं, केस बर्डन्स अलग अलग हैं, इसलिए हर हाई कोर्ट के पास में केस बर्डन्स अलग अलग होने की वजह से स्पेशल कोर्ट का जो गाइडलाइंस होगी वो हर स्टेट की स्पेसिफिक गाइडलाइंस होनी चाहिए. अब बेसिकली हमको समझना है इस इश्यू में, क्योंकि ये इश्यू आया है तो हम थोड़ा समझेंगे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स. राजनीति का अपराधीकरण. पहले जितने भी राजनेता हुआ करते थे देश हित के लिए, देश हित को सर्वोपरि मान करके काम करते, लेकिन फिर बाद में 1970s 80s में जो दौर चालू हुआ वो हुआ कि जिसके पास बाहुबल है वही राजनीति में भी अव्वल है, ठीक है. तो बाहुबल के दम पर की जाने वाली राजनीति जब जिसको जब बढ़ावा मिला तो फिर क्रिमिनलाइजेशन, अपराधीकरण भी राजनीति में बढ़ा. बेसिकली क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स मीन्स that criminals contest elections, ये take part in active politics. Active politics में जब criminals का participation बढ़ जाए that is known as criminalization of politics, ठीक है. अब देखिए हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कहीं पर भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो किसी को इलेक्शन लड़ने से रोके या डिस्क्वालीफाई करे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हिज क्रिमिनल बैकग्राउंड. क्रिमिनल बैकग्राउंड के कारण किसी व्यक्ति को इलेक्शन लड़ने, कंटेस्ट करने से डिस्क्वालीफाई करने का कोई प्रावधान इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन अ क्रिमिनल कंटेस्टेंट एंड अ नॉर्मल अदर देन क्रिमिनल कंटेस्टेंट. किसी और क्रिमिनल कंटेस्टेंट के बीच में कोई क्लासिफिकेशन नहीं और इनको कोई भी डिबार नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. बट सेक्शन 8 ऑफ आरपीए एक्ट 1951 आरपीए एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का सेक्शन 8 ये मेंशन करता है कि अगर कोई पॉलिटिकल व्यक्ति इलेक्शन लड़ रहा है या कोई भी व्यक्ति जो कंटेस्टेंट है, इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है, अगर उसको 2 इयर्स से ज्यादा का पनिशमेंट मिला है किसी भी केस के अंतर्गत, ठीक है, इफ इज अवॉर्डेड अ इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 years in whatever the case, then he will be barred या banned for contesting elections for 6 years after he completes the jail term. मतलब अगर 2 साल की जेल हुई है तो 8 साल के लिए वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ठीक है. तो नेताजी अगर क्राइम कर रहे हैं तो नेताजी 2 साल से ज्यादा का अगर उनको पनिशमेंट मिल गया नेताजी को, देन नेताजी 2 साल की या फिर जितना भी जेल टर्म उनको मिला है वो सजा प्लस 6 साल राजनीतिक अज्ञातवास में रहेंगे, एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, इलेक्शंस नहीं लड़ पाएंगे. ये आरपीए एक्ट के सेक्शन 8 ने प्रावधान किया टू स्टॉप क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स, ठीक है. बट द लॉ डज नॉट बार इंडिविजुअल्स who have criminal cases registered against them. ये उन व्यक्तियों के लिए ये सेक्शन है जो ऑलरेडी कन्विक्टेड है. अब नेताजी को सजा मिल गई तब तो ठीक है कि उनको इलेक्शन लड़ने के से 6 साल के लिए रोक दिया जाएगा, लेकिन अगर नेताजी को सजा नहीं मिली है, अभी केस चल रहा है, पेंडिंग है, तो नेताजी को कोई ताकत नहीं रोक रही इलेक्शन लड़ने से. भले ही उन्होंने अपराध किया, लेकिन अभी जब तक सिद्ध नहीं हुआ तब तक नेताजी इन प्रावधानों के अंतर्गत चुनाव कंटेस्ट कर सकते हैं, इवन इफ मेनी नंबर ऑफ केसेस आर पेंडिंग अगेंस्ट देम. सो यही मामला यहां पर एड्रेस किया जा रहा है.
पिटिशंस बार बार लगती गई हैं, बहुत सारे एक्टिविस्ट ने भी कहा है, क्योंकि बहुत सारे केसेस अगेंस्ट द लॉ मेकर्स, लेजिस्लेटर्स पेंडिंग है। ये रिपोर्ट बताती है कोर्ट्स की कि 5111 केसेस आर पेंडिंग इन कोर्ट अगेंस्ट लेजिस्लेटर्स। 5112 5,112 cases are pending against various legislators across the country who are part of the legislature at present, whether it be member of legislative assembly, whether it be member of parliament। ठीक है, 5,012 ऐसे केसेस उनके खिलाफ पेंडिंग है, लेजिस्लेटर्स के खिलाफ, जिनके ऊपर अभी तक निर्णय नहीं हुआ है, और फिर भी वो इलेक्शन कंटेस्ट कर पा रहे हैं, जीत पा रहे हैं। अब अगर इलेक्शन कंटेस्ट करते भी हैं, जीतते भी हैं, तो व्हाट इज बेसिकली वी कैन मेक इट आउट फ्रॉम देम। अगर ये 5,112 में से मान लीजिए 10% लोग भी या 1% व्यक्ति भी कन्विक्ट हो जाता है, 1% भी होता तो राउंड अबाउट 51 लेजिस्लेटर विल बी कन्विक्टेड, और 51 लेजिस्लेटर अगर कन्विक्ट हो रहे हैं, मतलब 51 विल बी बार्ड फ्रॉम इलेक्शंस, फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस। पर वो अभी तो व्यक्ति बैठा हुआ है ना, क्राइम करने के बाद केस दर्ज हुआ है, जब तक केस चलेगा, हो सकता है कि जब तक निर्णय आए तब तक उसका वो टेन्योर ही खत्म हो जाए। दैट मींस दैट एट दैट पर्टिकुलर टाइम ही इज अ लॉ ब्रेकर, एंड लॉ ब्रेकर इज एक्टिंग एज अ लॉ मेकर। हाउ कैन अ लॉ ब्रेकर बी अ लॉ ब्रेकर? लॉ ब्रेकर कैन बी अ लॉ मेकर। कैसे हो सकता है ऐसा कि जो कानून का भक्षक है वो स्वयं ही कानून का रक्षक हो? ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। ये कानून का निर्माता हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा होना नहीं चाहिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस में। इसलिए कोर्ट को चिंता सता रही है कि जल्दी से जल्दी इन 5,112 केसेस को सॉल्व किया जाए, हल किया जाए, और यही अमिकस क्यूरे भी इसमें बोल रहे हैं। हंसराज विनय हंसारिया जी, नॉट हंसराज, विजय हंसारिया जी, वो भी यही कहना चाह रहे हैं इस पर्टिकुलर केस के अंदर। ठीक है, साइमल्टेनियसली द कोर्ट इज ऑल्सो कंसिडरिंग अ प्ली, एक पिटिशन और है कि जो भी व्यक्ति कन्विक्ट हो जाता है उनको लाइफ टाइम बैन कर देना चाहिए इलेक्शन से। ठीक है, एनी मेंबर, एनी कंटेस्टेंट, एनी पर्सन हु इज कन्विक्टेड अंडर एनी ऑफेंस which amounts to a imprisonment of more than 2 years, he should be barred, completely banned for life, not for 6 years alone after completing, for life, बैंड फॉर लाइफ, फॉर हिज फ्यूचर लाइफ, कि कभी भी वो फ्यूचर में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं बन पाए, एमएलए नहीं बन पाए। ठीक है, तो ये एक प्ली और लगी है जिसके ऊपर विचार किया जा रहा है। बट गवर्नमेंट ने पहले भी कहा है कि द बैन ऑफ 6 years इज सफिशिएंट। ठीक है, ये गवर्नमेंट ने पहले अपने एफिडेविट्स में सबमिट किया है विद अपहोल्डिंग द सेक्शन 8 ऑफ आरपीए कि 6 साल का बैन काफी है। एक बार उनका जेल टर्म पूरा हो जाए उसके बाद 6 साल तक वो नहीं लड़ पाएंगे, उसके बाद वो मानते हैं कि हाँ ये व्यक्ति सुधर गया है और अब ये चुनाव लड़ सकता है। ये ठीक भी है। वंस अ क्रिमिनल ऑलवेज अ क्रिमिनल की फिलॉसफी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तो नहीं है, ना ही इंडियन इतिहास की रही है। पास्ट में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने अपराध करने के बाद में हृदय परिवर्तन होकर के अच्छे कार्य भी किए हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्ति भी भारत में रहे हैं। आपने गौतम बुद्ध की कहानी सुनी होगी तो अंगुलीमाल की कहानी सुनी होगी। वह व्यक्ति जिसने एक प्रण लिया था कि मैं 100 उंगलियों की माला पहनूंगा और जो भी व्यक्ति दिखता था उसकी उंगलियां काट देता। जब गौतम बुद्ध से टकराया और जब ज्ञान का आदान प्रदान हुआ तो उस अंगुलीमाल का भी हृदय परिवर्तन हो गया। तो जब ऐसे व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो सकता है तो इन क्रिमिनल्स का भी हो सकता है। और जब इनका हृदय परिवर्तन हो गया है और ये शुद्ध हो गए हैं तो क्यों इनको रोका जाए डेमोक्रेसी में भाग लेने से, इलेक्शन में भाग लेने से? तब ले सकते हैं। ठीक है, अब जो ये दूसरा वाला मामला हम बात कर रहे थे कि जो जिनके खिलाफ पेंडिंग केसेस हैं और हमारे यहाँ की इंडियन जुडिशरी क्योंकि स्लो है तो लंबे समय तक केसेस चलते रहते हैं, तो उनका क्या किया जाए? हो सकता है उनमें कुछ लोग ऐसे हों जो इनोसेंट हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो इनोसेंट नहीं है लेकिन फिर भी लॉ मेकर के तौर पर, लेजिस्लेटर के तौर पर बैठे हुए हैं, जिनको नहीं होना चाहिए वहां पर। ठीक है, तो ये समस्या है, इसके ऊपर सुझाव और चल सकते हैं और सुझाव मांगे भी जा सकते हैं कि हाउ डू यू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ पेंडिंग केसेस अगेंस्ट लेजिस्लेचर्स। ठीक है, अगेंस्ट लेजिस्लेटर्स
किस तरीके से पेंडिंग केसेस की, लंबित मामलों की समस्या को आप हल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने बैन लगा दिया कि जिनके खिलाफ केस दर्ज हो गया और उसी को आप डिस्क्वालीफाई कर दीजिए, तो वहां पर एक समस्या यह आएगी कि फेक केसेस रजिस्टर होते ही हैं। चुनाव के ठीक पहले किसी व्यक्ति के ऊपर फेक केस दर्ज करा दिया और वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा, बाद में पता चला कि वो तो एक फेक केस था और उनको कन्विक्शन नहीं हुआ, ही इज एक्विटेड। ठीक है, कन्विक्शन से फ्री हो गए इलेक्शन के जस्ट बाद। बट उनका चुनाव लड़ने का डेमोक्रेटिक राइट तो सिर्फ इसी प्रिटेक्स्ट पे चले गया ना कि उनके ऊपर आरोप था, तो इसको भी नहीं किया जा सकता, वो भी एंटी डेमोक्रेटिक हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, हम दिमाग में एकदम से सोच लेते हैं कि जिनके ऊपर क्रिमिनल केस लगाया उसको हटा दो। ठीक है, बट अपोजिशन पार्टी डर्टी पॉलिटिक्स भी तो प्ले कर सकती है ना, किसी इनोसेंट व्यक्ति के ऊपर केस फाइल कर दिया ताकि ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट ना कर पाए और बाद में हटा दिया, अगर ऐसा नियम आ जाता है तो। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा नियम अभी नहीं है। चलिए साथ में हम कुछ और चीजें देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से स्टेप्स सुप्रीम कोर्ट ने लिए हैं टू अवॉइड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पास्ट में स्टेप्स लिए हैं क्या? बिल्कुल लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में एक एफिडेविट मैंडेटरी कर दिया। एफिडेविट फॉर व्हाट? एफिडेविट फॉर क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स। किसी भी व्यक्ति को अगर चुनाव लड़ना है तो उसकी क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स का एफिडेविट प्रस्तुत करना पड़ेगा, और अगर वो गलत माना जाता है, कोई लंबित मामले की जानकारी या किसी भी मामले की जानकारी इसमें नहीं दी जाती है, तो फिर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, तो एफिडेविट देना पड़ेगा। फिर 2013 में 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने दो काम किए। पहला काम किया कि इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन ऑन कन्विक्शन। इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन, जिसके ऊपर अभी काफी ज्यादा बहस चल भी रही थी। इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन यूपी के कुछ लोगों को किया गया, एमएलएस को। इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है? जिस दिन केस का निर्णय आया और नेताजी दोषी पाए गए और उनको 2 साल से ज्यादा की सजा मिली है उस केस में, तो उसी दिन के बाद से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, हाथों हाथ डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। क्यों ऐसा प्रावधान किया गया? क्योंकि हमारे यहाँ की जुडिशरी में अपील सिस्टम है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कुछ निर्णय दिया तो उन्होंने हाई कोर्ट में अपील लगा दी, फिर बने रहे, फिर सुप्रीम कोर्ट में लगा दी, और ये जब तक अपील का निराकरण हुआ तब तक उनका टेन्योर खत्म हो गया। उन्होंने ऑलरेडी एंजॉय कर लिया अपना टेन्योर, अब कन्विक्शन होना है तो हो जाए, कम से कम उनका टेन्योर तो सिक्योर हो गया। पहले क्या था? पहले ये था कि इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता था। ठीक है, जो लेजिस्लेटर के खिलाफ अगर डिसीजन आगे भी गया कन्विक्शन का, तो अपील करने का समय है, अपील करने के बाद में हियरिंग होगी, हियरिंग होने के बाद में दूसरी अपील होगी, फिर से कन्विक्शन पाया गया तो फिर से अपील होगी, फिर हायर कोर्ट को अपील होगी, फिर हायर कोर्ट को अपील होगी, तब तक समय लगेगा और तब तक उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन, जिस दिन कन्विक्शन प्रूव हो गया उसी दिन डिस्क्वालीफाई कर दो और फ्रेश इलेक्शन कराओ उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के। 2013 में एक और चीज की गई, नोटा इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि अगर आपको जो भी लोग लड़ रहे हैं उनमें से कोई पसंद नहीं है तो इस पे वोट दीजिए। अगर 3 लोग लड़ रहे हैं और तीनों ही क्रिमिनल हैं, आपको लगता है कि तीनों ही क्रिमिनल हैं, तीनों ही अयोग्य हैं, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपके पास में, उस सिचुएशन में आपके पास में एक और ऑप्शन है कि आप इसको इलेक्ट कीजिए। कोई भी ऊपर वाले को इलेक्ट मत कीजिए, इसको दबाइए और नोटा पे। पर खैर ये वाला जो प्रावधान है काफी ज्यादा डिस्प्यूट में है, क्योंकि इसके वोट काउंट नहीं होते, मैटर भी नहीं करते, 50% से ज्यादा आ जाए तो भी इलेक्शन रद्द नहीं किया जाता, तो इसलिए दिक्कत है। फिर 2014 आता है। 2014 में डे टू डे ट्रायल का कॉन्सेप्ट लाया गया कि लेजिस्लेटर्स के खिलाफ अगर कोई भी क्रिमिनल केस है तो उसको डे टू डे ट्रायल करके, है ना, हर दिन ट्रायल करके उसको जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने पीएम और सीएम्स को एडवाइस किया, रिकमेंड किया कि ऐसे व्यक्ति जिनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग हो उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जगह कम से कम ना दी जाए। वहां लेजिस्लेटर के तौर पर एक्ट करते रहे, लेकिन पेंडिंग केसेस के केस में उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जगह नहीं मिले। ठीक है, तो ये सब चीजें सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कर चुका है। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने इसलिए पूरा डिटेल में समझाया कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इंडिया में चर्चित मुद्दा है, कितने साल का बैन होता है, आरपी एक्ट के कौन से सेक्शन में प्रावधान है, ये सब चीजें प्रीलिम्स के काम की हमारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और मेंस में भी ये पूछी जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, पार्लियामेंट्री पुल्स ऑफ रेलवे ओवर लॉसेस इनकर्ड। ठीक है, पास्ट ईयर में
फाइनेंशियल ईयर 2022 में 15,000 करोड़ का लॉस जो है रेलवे ने फाइल किया है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है रेलवे से ऐसा क्यों है, तो रेलवे ने कहा है भैया कि कोविड के कारण और 7th पे कमीशन के कारण, 7th पे कमीशन लागू हुआ, तनख्वाहें बढ़ गई तो खर्चा बढ़ गया, और कोविड के कारण जो है, पेंडेमिक के कारण रेवेन्यू जो है, इनकम जो है वो गिर गई, और इसी वजह से इतना बड़ा लॉस हुआ है। ठीक है, फ्यूचर में लॉस को कम करने के लिए काम किया जाएगा ताकि रेवेन्यू हो सके। तो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए काम किया जा रहा है। ठीक है, किस तरीके से, एडवर्टीजमेंट के माध्यम से। ठीक है, इसके बाद जो सरप्लस रेलवे लैंड पड़ी हुई है, ठीक है, ज्यादा लैंड जहां रेलवे के पास में, उसका इस्तेमाल करके एटीएम स्टेशन रेलवे पे दे करके रेंट पे चले जाएंगे एटीएम स्टेशन, उससे भी रेवेन्यू जनरेट होगा। तो अलग अलग तरीके से रेवेन्यू जनरेशन की, है ना, अपार्ट फ्रॉम जस्ट ट्रैवलिंग फेयर, रेलवे के दूसरे एसेट्स को इस्तेमाल करके रेवेन्यू जनरेट किया जाए, जिससे कि ये लॉस जो किया गया है इसको भरपाई कर सके, अगले साल ऐसा लॉस ना हो। तो ये बात की गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विथ राइजिंग केसेस अ लार्जर इकोनॉमिकल बर्डन, राइजिंग कैंसर केसेस। कैंसर क्या होता है? अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ इन द बॉडी इज नोन एज कैंसर। किसी भी जगह पर किसी भी सेल का बॉडी के अंदर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगे तो उसको कैंसर कहते हैं। ट्यूमर के फॉर्म में हो सकता है, विदाउट ट्यूमर अगर है तो पूरे शरीर में फैलने जैसा हो सकता है, ब्लड में होता है। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के कैंसर होते हैं। ठीक है, अब ये जो रिपोर्ट है इसमें एक डेटा मुझे सबसे ज्यादा काम का लगा कि 14.6 लाख कैंसर केसेस हो चुके हैं 2022 में, जो कि 2025 तक 15.7 लाख हो सकते हैं। तो ये रैपिड इंक्रीज जो हो रहा है, इस कारण इकोनॉमिक बर्डन बढ़ रहा है। इकोनॉमिक बर्डन बोथ ऑन गवर्नमेंट एज वेल एज ऑन पीपल। देखिए, पब्लिक को आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस करना पड़ता है बहुत सारा कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में प्रदेशों के अलग अलग चार्जेस हैं कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स इन चार्ट्स में हाईलाइट किए हैं। जो सबसे ज्यादा चिंताजनक मुझे लगा दैट वाज कि इंक्रीजिंग केसेस, 14.6 लाख केसेस बढ़ चुके हैं। ठीक है, 2022 में, और 15.7 लाख बढ़ सकते हैं 2025 तक। ठीक है, इंडिया में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स को अंडरस्टैंड करने की बात की गई है, एक्सप्लेन किया गया पूरा। देखते हैं क्या है। इन इंडिया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक एरिया रहा है, और कोझिकोडे ने अभी एक नया इनिशिएटिव किया कि वेस्ट से एनर्जी बनाई जाए। इंडिया में म्युनिसिपल वेस्ट जो कलेक्ट होता है, हाउस होल्ड वेस्ट जिसको हम बोलते हैं, उस हाउस होल्ड वेस्ट का लगभग 55 to 60% इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो 55 to 60% इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है, इसको क्या, किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है? आइदर इन फॉर्म ऑफ कंपोस्ट, खाद बना दिया जाए, या फिर बायोगैस बना दिया जाए, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल है, मीथेन प्रोड्यूस कर देगा, बायोगैस बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो बचा हुआ है उसमें से 30% के लगभग नॉन बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायो, और जो बचा हुआ 10 से 15% है दैट इज इनर्ट, दैट इज इनर्ट। ठीक है, इनर्ट मतलब सिल्ट, रॉक्स, ये सब वेस्ट है। ठीक है, उसका कोई लेना देना नहीं, वो हार्मफुल भी नहीं है, कुछ नहीं। ठीक है, पर बाकी दोनों हार्मफुल है अगर सही तरीके से ट्रीट नहीं किए जाए तो। हमने लास्ट में कुछ दिनों पहले एक टॉपिक डिस्कस किया था। ठीक है, फायर्स इन लैंडफिलिंग। तो फायर्स इन लैंडफिलिंग में भी हमने देखा था किस तरीके से दोनों कंपोनेंट साथ में जब लैंड के अंदर बरी कर दी जाते तो मीथेन रिलीज होती है, और वो टेम्परेचर राइज करती है और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को लाइट अप कर देती है, और लैंडफिलिंग्स में आग लगने लगती है, जो कोची में देखा गया, जिसके कारण बहुत सारी हार्मफुल गैसेस निकली। ठीक है, अब जो ये मैंने चार्ट बनाया है, इसमें आपको पता चल रहा होगा कि ये वाला वेस्ट खतरनाक हो गया। इसको तो मैनेज किया जा सकता है, इसको मैनेज करना खतरनाक है। इसको कैसे मैनेज किया जाए? अब ये जो वेस्ट है, इसमें से 2-3% वेस्ट तो ऐसा है जिसको रिसाइकल किया जा सकता है। हार्ड प्लास्टिक हो गया तो रिसाइकल किया जा सकता है, रीयूज किया जा सकता है। कुछ
इम्प्रोवाइजेशन करके। लेकिन बाकी बचा हुआ 25% अप्रोक्स जो वेस्ट है उसका क्या किया जाए? तो ये वेस्ट को वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय कंबशन। इसका कंबस्ट करेंगे, इसमें बेसिकली क्या होता है, सॉफ्ट प्लास्टिक्स होते हैं, ठीक है, कंट्रोल कंबशन करेंगे कम एमिशन के साथ, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। ये किया जा सकता है, ठीक है। तो ये वेस्ट टू एनर्जी प्लांट होता है। अब इस आर्टिकल में कुछ चीजें और हाईलाइट की हुई है कि क्या ऐसी चीजें हैं, व्हाट आर वेरियस थिंग्स विच आर ऑफ कंसर्न, एरिया ऑफ कंसर्न क्या है? सबसे पहला कंसर्न है लो कैलोरीफिक वैल्यू। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जिसमें प्लास्टिक्स है, पेपर है ना, उसके बाद जो कपड़े के रैग्स हैं, ठीक है, ये सब इनका कैलोरीफिक वैल्यू लगभग 1000 to 1500 किलो कैलोरी पर केजी होता है। जबकि कोल का कितना होता है? कोल इज अ गुड फ्यूल, 8000 किलो कैलोरी होता है, ये कोल का है, ठीक है। और जिससे हम बनाने की बात कर रहे हैं वेस्ट टू एनर्जी, उसका कितना होगा? 1500 किलो कैलोरी पर केजी, ठीक है। तो बहुत कम कैलोरिफिक वैल्यू है। सेकंड, सेग्रीगेशन नहीं है, प्रॉपर सेग्रीगेशन नहीं है। इस वजह से प्लांट्स को, क्योंकि अब ये वेस्ट जो है वो प्लांट के लिए फ्यूल है, तो प्लांट्स को फ्यूल नहीं मिल पाता टाइम से। सेग्रीगेशन सही होने की वजह से क्वालिटी नहीं मिल पाती फ्यूल की, क्योंकि अब यही नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो है ये फ्यूल है उसके लिए। क्वालिटी मतलब मॉइस्चर कंटेंट कम हो, सेग्रीगेटेड हो, तो ये सब चीजें नहीं मिल पाती। तो ये एक एरिया ऑफ कंसर्न है जिसको हम बोल सकते हैं पुअर वेस्ट मैनेजमेंट। तीसरा है हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब क्योंकि कैलोरीफिक वैल्यू कम है तो ज्यादा फ्यूल बर्न करना पड़ता है, तब जाकर के कुछ एनर्जी मिलती है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। लगभग 7 to 8 रुपीज है पर यूनिट, 7 to 8 रुपीज। जबकि सोलर से अगर बनाए या हाइडल पावर प्लांट से बनाए तो 4 रुपीज के आसपास तक का, 3 to 4 रुपीज के आसपास पर यूनिट कॉस्ट आता है, प्रोडक्शन कॉस्ट। तो ये दो तीन जो इश्यूज हैं, इनके कारण वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स फेल होते हैं, ठीक है। कोझिकोडे जहां पर ये किया जा रहा है, ठीक है, केरला में, यहां पर लगभग म्युनिसिपल वेस्ट जो है वो 200 टन पर डे का है, ठीक है, 200 टन। तो इसकी वजह से यहां पर जो प्लांट लगाया गया है 6 मेगावाट का, ठीक है, जहां पर लगभग 50 टन पर डे एक किलो 1 मेगावाट जनरेट करने में लगता है। तो 1 मेगावाट का जो प्लांट है 50 टन पर डे लगाएगा, तो इस वजह से 6 मेगावाट की जो प्लांट कैपेसिटी है रिस्की होगा कि क्योंकि रेगुलरली फ्यूल नहीं मिल पाएगा। तो 3 मेगावाट के अराउंड में जो है वो चल सकता है, ऐसी बात की जा रही है। तो इसलिए ये पूरा प्लांट है, किस तरीके से वेस्ट टू एनर्जी बनाया जाता है, क्या समस्याएं आती है वेस्ट टू एनर्जी में, ठीक है। देखिए वेस्ट टू एनर्जी से दो चीजें हो रही है, एक तो वेस्ट कंट्रोल होता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए अच्छा, तो ये काम कर पाएगा, प्लस साथ ही साथ एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल होती है, ठीक है। तो दोनों ही मामले बैठ जाते हैं। दो पूरी तरह से कोई क्लीन एनर्जी नहीं है, क्लीन मोड ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन नहीं है, बट बेटर कि हम पोल्यूशन के तौर पर उसको लैंड फिलिंग के तौर पर कहीं छोड़ दें तो वो भी पोल्यूट होगा, ठीक है, पोल्यूशन करेगा अलग अलग प्रकार का। उससे अच्छा है कि इस मेथड में जाकर के उसको कोई यूजफुल तरीके से एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाए, ये बेटर वे है, ठीक है, टू कंट्रोल दैट वेस्ट, टू यूज दैट वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये तरीका से किया जा सकता है वेस्ट टू एनर्जी, अच्छा कॉन्सेप्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3 states chip in to stop illegal sand mining in चंबल सेंचुरी। चंबल सेंचुरी जो है 3 स्टेट के कॉन्फ्लुएंस जोन पर है। इस तरफ यूपी है, नीचे एमपी है, और इस तरफ राजस्थान है, और यहां पर है नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। 1978 में एमपी गवर्नमेंट ने
इसको पहली बार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये तीन इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए संरक्षण का काम, कंजर्वेशन का काम करते हैं। एक है घड़ियाल, ठीक है, घड़ियाल क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। एक है गैंगेटिक डॉल्फिन, इंडेंजर्ड है, इंडेंजर्ड लिस्ट में IUCN के। और इसके बाद है तीसरा, दैट इज रेड क्राउन्ड रूफ टर्टल। रेड क्राउन्ड रूफ टर्टल, टर्टल है कछुआ, ये भी इंडेंजर्ड लिस्ट में है। ठीक है, अब यहां पर सैंड माइनिंग हो रही थी। सैंड माइनिंग चंबल वाले एरिया में, चंबल में काफी ज्यादा होती है, रेमाइंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत सेंसिटिव इकोसिस्टम है चंबल वाले एरिया का। लेकिन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, खासकर इन तीन प्रजातियों के कंजर्वेशन के लिए, स्पीसीज के कंजर्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चर्चा में था, मैंने बोला बता देते हैं। ठीक है, चलिए, लोकेशन भी क्लियर हो गई, किन किन एनिमल्स के संरक्षण के लिए, स्पीसीज के संरक्षण के लिए इस्तेमाल होता है वो भी क्लियर हो गया। चलिए, नेक्स्ट है एंटी सबमरीन वॉरशिप INS एंद्रोथ लॉन्च। एंद्रोथ क्या है? एक एंटी सबमरीन है, सबमरीन वॉरशिप है। ठीक है, जो कोस्टल रीजन्स में, कोस्टल वाटर्स में सबमरीन से बचाने के लिए कारगर सिद्ध होगी। इसको लॉन्च कर दिया गया है। ये सबमरीन जो एंटी सबमरीन वॉरशिप है, इसको किसने बनाया है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, कोलकाता। ठीक है, कोलकाता गार्डन रीच सबमरीन शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने इसको बनाया है। चलिए, तो आज के करंट अफेयर्स के सेशन में इतना ही आर्टिकल्स थे। आई होप आपको जो आज टेक अवे के लिए मिला, जो डेटा मिला, जो कंटेंट मिला, आप उससे सेटिस्फाइड होंगे। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है, करंट अफेयर्स का जो हम लेते हैं इतना डायनेमिक तरीके से, इधर उधर से लिंक करके, करंट के साथ में स्टैटिक पोर्शन को इंटीग्रेट करके, अगर ये अच्छा लगता है तो नीचे दिए गए बटन्स पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ, अन्य जो सहपाठी छात्र हैं आपके साथ जो पढ़ते हैं, उनके साथ इसको शेयर कीजिए। अगले सेशन में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।